हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चांस टू लर्न। अगर आप 12th फाइनल एग्जाम देने वाले हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस बार फाइनल एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस रखते हैं। सो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक देखो, एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प मिलेगी। Question 1. Divya brought dash information with her. Options are A. Some, B. Several, C. Any, D. Many. Correct answer is A. Some. यहाँ information ऐसा वर्ड है जिसे गिना नहीं जा सकता। जब चीज काउंटेबल ना हो तो हम some बोलते हैं। इसीलिए सेंटेंस नेचुरली बोलेगा दिव्या brought some information, और यही बिल्कुल सही सुनता है। Question 2. Children often have their way dash throwing tantrums. Options are from, with, by, for. Correct answer is C. By. यहाँ बात हो रही है किस तरीके से काम हो रहा है। बच्चे टैंट्रम करके अपनी बात मनवा लेते हैं। इंग्लिश में के जरिए के लिए by आता है, इसीलिए by throwing tantrums बिल्कुल नेचुरल है। Question 3. A suspension bridge was dash the river. Options are under, in, over, by. Correct answer is C. Over. ब्रिज कभी नदी के अंदर या नीचे नहीं होता, ब्रिज हमेशा नदी के ऊपर होता है, इसीलिए इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिज बिल्ट ओवर द रिवर। Question 4. The students decided to go to school dash foot. Options are by, on, at, through. Correct answer is B. On. इंग्लिश में पैदल चलने के लिए एक फिक्स्ड फ्रेज होता है on foot. by foot गलत लगेगा, इसीलिए यहां on ही सही बैठता है। Question 5. I dash return before sunset to avoid dark alleys. Options are used, shall, can, might. Correct answer is B. Shall. यहां बोलने वाला अपना पक्का डिसीजन बता रहा है। जब हम स्ट्रॉन्ग इंटेंशन दिखाते हैं तो shall यूज होता है, इसीलिए I shall return before sunset बिल्कुल कॉन्फिडेंट साउंड करता है। Question 6. Shabnam has dash MBA from Harvard. Options are A. The, an, no article. Correct answer is C. An. MBA बोलते वक्त आवाज M से स्टार्ट होती है, और जब वर्ड वावल साउंड से शुरू हो तो an यूज होता है, इसीलिए हम बोलते हैं an MBA. Question 7. He exclaimed with relief that his father had returned safe from the battlefield. Options are he said I am relieved my father had returned safe from the battlefield. He exclaimed my father returned safe from the battlefield. He sighed with relief my father has returned safe from the battlefield. He said with relief my father had returned safe from the battlefield. Correct answer is B. यहाँ फीलिंग स्ट्रांग है रिलीफ की। डायरेक्ट स्पीच में इस फीलिंग को नेचुरली दिखाने के लिए एक्सक्लेम्ड के साथ सिंपल सेंटेंस सबसे अच्छा लगता है, जो ऑप्शन बी में है। Question 8. By the next year, I dash French for 5 years. Options are will learn, will have learnt, would learn. Correct answer is B. Will have learnt. By the next year सुनते ही समझ आता है कि फ्यूचर में कोई काम पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा। इंग्लिश में इस फीलिंग को will have learnt परफेक्टली दिखाता है। Question 9. She dashed to the market tomorrow. Options are went, goes, will go, have gone. Correct answer is C. Will go. Tomorrow फ्यूचर टाइम बताता है, फ्यूचर के लिए सीधा और सिंपल स्ट्रक्चर होता है will go. Question 10. The jury dash divided in their opinion. Options are was, were, is, has been. Correct answer is B. Were. जूरी एक ग्रुप होता है। जब जूरी के सब लोग अलग अलग सोच रहे हों तो हम उन्हें प्लूरल मानते हैं, इसीलिए सेंटेंस नेचुरली बोलेगा जूरी वर डिवाइडेड। Question 11. They say that they dash going to travel abroad the following month. Options are A. Are, B. Is, C. Have been, D. Had been. Correct answer is D. Had been. ये रिपोर्टेड स्पीच है और ओरिजिनल बात पहले बोली जा चुकी है, इसलिए सेंटेंस पास्ट के अंदर पास्ट को दिखाता है, जो had been से क्लियर होता है। Question 12. The vines were dashed the garden through the broken fence. Options are A. Creeping down, B. Creeping under, C. Creeping into, D. Creeping off. Correct answer is C. Creeping into.
बेल फेंस के टूटे हुए हिस्से से अंदर घुस रही थी। जब मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ हो तो इंग्लिश में इनटू यूज होता है। क्वेश्चन 13 द डॉग स्टक आउट डैश टंग। ऑप्शंस आर ए हिज, बी हर, सी इट्स, डी हर्स। करेक्ट आंसर इज सी इट्स। एनिमल के लिए जब ओनरशिप दिखाते हैं तो इट्स बोलते हैं, इसलिए डॉग के साथ इट्स टंग ही सही लगता है। क्वेश्चन 14 रचना हैज बिन लिविंग इन न्यूयॉर्क डैश 2005। ऑप्शंस आर ए फ्रॉम, बी बाय, सी सिंस, डी फॉर। करेक्ट आंसर इज सी सिंस। जब एग्जैक्ट ईयर दिया हो जैसे 2005 तो हम सिंस बोलते हैं, यह बताता है कि काम तब से चल रहा है। क्वेश्चन 15 हर्षिता लुक्स एग्जॉस्टेड, शी डैश बी सिक। ऑप्शंस आर ए मस्ट, बी शैल, सी कैन, डी माइट। करेक्ट आंसर इज ए मस्ट। जब कोई बात देखकर स्ट्रॉन्ग अंदाजा लगाया जाता है तो इंग्लिश में मस्ट आता है। थकान देखकर लगता है कि वो बीमार ही होगी। क्वेश्चन 16 रंजीत डैश अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। ऑप्शंस आर ए नीड, बी ought to, सी कैन, डी शैल। करेक्ट आंसर इज बी ought to। यहां बात एबिलिटी या परमिशन की नहीं हो रही बल्कि मॉरल ड्यूटी की हो रही है। गलती हो गई है तो माफी मांगनी चाहिए। इंग्लिश में जब करना चाहिए मॉरल सेंस में होता है तो ought to यूज होता है। क्वेश्चन 17 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शंस आर ए insoluble, बी insoluble, सी insoluble, डी insoluble। करेक्ट आंसर इज ए insoluble। इस वर्ड की सही स्पेलिंग insoluble होती है। बाकी ऑप्शंस में लेटर्स इधर उधर हो गए हैं जो एग्जाम में गलत माने जाते हैं। क्वेश्चन 18 द पुलिस कॉट द थीफ। ऑप्शंस आर ए द थीफ हैज बीन कॉट बाय द पुलिस, बी द थीफ वॉज टू बी कॉट बाय द पुलिस, सी द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, डी द सेंटेंस कैनॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। करेक्ट आंसर इज सी। सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है। जब सिंपल पास्ट को पैसिव बनाते हैं तो स्ट्रक्चर होता है वॉज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसलिए वॉज गॉट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 19 डोंट टच द हॉट स्टोव, वार्न्ड माय मदर। ऑप्शंस आर ए माय मदर वार्न्ड मी दैट आई शुड टच द हॉट स्टोव, बी माय मदर वार्न्ड मी टू नॉट टच द हॉट स्टोव, सी माय मदर वार्न्ड मी नॉट टू टच द हॉट स्टोव, डी माय मदर वार्न्ड मी टू टच द हॉट स्टोव। करेक्ट आंसर इज सी। वार्निंग के साथ जब मना किया जाता है तो नेचुरल स्ट्रक्चर होता है वार्न्ड मी नॉट टू, इसीलिए ऑप्शन सी सुनने और लिखने दोनों में करेक्ट लगता है। क्वेश्चन 20 शी स्टडीड वेल, शी फेल्ड द एग्जाम। ऑप्शंस आर ए बिकॉज, बी सो, सी बट, डी एंड। करेक्ट आंसर इज सी बट। पहला सेंटेंस पॉजिटिव है और दूसरा उसके ऑपोजिट रिजल्ट दिखा रहा है। जब कॉन्ट्रास्ट होता है तो इंग्लिश में बट यूज होता है। क्वेश्चन 21 द वर्ड बो इन द सेंटेंस टेक अ बो आफ्टर योर परफॉर्मेंस मीन्स। ऑप्शंस हैं ए द फ्रंट ऑफ अ शिप, बी अ रिबन टाइड अराउंड अ पैकेज, सी अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट, डी अ मिडीवल वेपन। करेक्ट आंसर है सी अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। परफॉर्मेंस के बाद बो लेने का मतलब होता है झुककर रिस्पेक्ट दिखाना। यहां ना शिप का फ्रंट है ना वेपन, सिर्फ रिस्पेक्ट वाला जेस्चर। क्वेश्चन 22 शी सेड दैट शी डैश स्पीक फ्रेंच व्हेन शी वाज यंग। ऑप्शंस हैं ए मे, बी कुड, सी कैन, डी माइट। करेक्ट आंसर है बी कुड। पास्ट की एबिलिटी बतानी हो तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड यूज होता है, इसलिए कुड स्पीक फ्रेंच बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 23 इफ ही डैश मोर केयरफुल ही वुडंट हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। ऑप्शंस है ए वॉज, बी हैड बीन, सी वर, डी हैज बीन। करेक्ट आंसर है बी हैड बीन। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है जो पास्ट की गलती और उसके रिजल्ट को दिखाता है। इस टाइप के सेंटेंस में हैड बीन का यूज होता है। क्वेश्चन 24 चूज द करेक्टली ऑर्डर्ड सेंटेंस। ऑप्शंस है ए दे ऑन द वीकेंड्स ऑफन प्ले फुटबॉल, बी ऑफन दे प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड्स, सी
They often play football on the weekends. D. They play football often on the weekends. Correct answer है C. They often play football on the weekends. English sentence में adverb often usually subject के बाद आता है, इसलिए they often play football सबसे natural और correct order है. Question 25. Arun saw dash artifacts in the museum. Options है A. Many, B. Much, C. Any, D. A little. Correct answer है A. Many. Artifacts count किए जा सकते हैं. जब countable चीज ज्यादा हो तो many use होता है. Question 26. The couple stayed in Kerala dash 2 weeks. Options A. Since, B. For, C. By, D. Through. जब ड्यूरेशन दिया हो जैसे 2 weeks तो for का यूज होता है. Question 27. The synonym of interesting is options A. Crucial, B. Fascinating, C. Boring, D. Puny. Interesting का मतलब होता है जो ध्यान खींचे. Fascinating exactly वही फीलिंग देता है. Question 28. The synonym of conflict is options A. Accord, B. Strife, C. Harmony, D. Consensus. Conflict का मतलब होता है झगड़ा या टकराव. Strife भी वही मीनिंग देता है. Question 30. The antonym of rapid is options A. Sluggish, B. Foolish, C. Humble, D. Swift. Rapid मतलब तेज, उसका ऑपोजिट स्लो होता है, जो sluggish से क्लियर होता है. Question 31. The antonym of frank is options A. Greedy, B. Timid, C. Reserved, D. Miserable. Correct answer C. Reserved. Frank का मतलब होता है खुलकर बोलने वाला. जो खुलकर ना बोले वो reserved होता है. Question 32. Break the ice means options A. To smash something, B. To make a mistake, C. To start a conversation, D. To indulge in a fight. Correct answer C. Break the ice एक idiom है जो पहली बार बात शुरू करने के लिए बोला जाता है. Question 33. Alina is dash university student. Options A. An, B. A, C. The, D. No article. Correct answer B. A. यूनिवर्सिटी का साउंड यू से स्टार्ट होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सही है. Question 34. Shikha asked me if I had seen her book. Options A. Shikha said, have you seen the book? B. Shikha asked me, did you see my book? C. Shikha asked, have you seen my book? D. Shikha asked, had you seen the book? Correct answer C. रिपोर्टेड सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो डायरेक्ट स्पीच भी हैव यू सीन वाली होनी चाहिए. Question 35. The passengers dash in the lounge for hours. Options A. Are waiting, B. Waits, C. Have been waiting, D. Had waited. Correct answer C. Have been waiting. यहां काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है. इस फीलिंग को have been waiting बेस्ट शो करता है. Question number 36. He said that he dashed to the park the previous day. Options A. Had gone, B. Has gone, C. Goes, D. Is going. Correct answer A. Had gone. Reported speech में जब previous day आए तो past perfect had gone use होता है. Question number 37. I will call you dash I reach home. Options A. While, B. When, C. Since, D. Then. Correct answer B. When. कॉल उसी टाइम होगा जब मैं घर पहुंचूंगा. इस रिलेशन के लिए when बेस्ट है. Question number 38. Choose the correct sentence. Options A. The lion are roaring loudly in the forest. B. The lion roared loudly in the forest. C. The lion is roared loudly in the forest. D. The lion roared loudly in the forest. करेक्ट आंसर बी. सिंगुलर सब्जेक्ट लायन के साथ करेक्ट वर्ब और टेंस ऑप्शन बी में है. क्वेश्चन नंबर 39. गरिमा इज इंटरेस्टेड डैश बाइंग अ न्यू लैपटॉप. ऑप्शंस ए. टू, बी. फॉर, सी. इन, डी. एट. करेक्ट आंसर सी. इन.
इंग्लिश में फिक्स्ड फ्रेज होता है इंटरेस्टेड इन, इसलिए इन बाइंग करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40। अभिषेक रैन फास्ट डैश द पेवमेंट। ऑप्शंस ए इज, बी ऑन, सी एट, डी फॉर। करेक्ट आंसर बी ऑन। सरफेस के ऊपर मूवमेंट दिखाने के लिए ऑन यूज होता है, इसलिए ऑन द पेवमेंट। Question 41. You dash not add extra spices to the soup. Options A. Might, B. Need, C. Shall, D. Ought. Correct answer है D. Ought. यहाँ suggestion और advice दी जा रही है, इसलिए ought not to का sense यहाँ perfectly fit होता है। Question 42. We dash help those in need. Options A. Should, B. May, C. Can, D. Might. Correct answer है A. Should. Moral duty और advice के लिए should use होता है। Question 43. The synonym of small is options A. Gross, B. Enormous, C. Trivial, D. Vital. करेक्ट आंसर है सी ट्रिवियल। स्मॉल चीज को जब इंपॉर्टेंस के हिसाब से छोटा बताते हैं तो ट्रिवियल यूज होता है। क्वेश्चन 44। द एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी इज ऑप्शंस ए ह्यूमिलिटी, बी लिबर्टी, सी टिमिडिटी, डी कंपैशन। करेक्ट आंसर है बी लिबर्टी। कैप्टिविटी मतलब बंधन, उसका ऑपोजिट आजादी जो लिबर्टी कहलाता है। Question 45. Once in a blue moon means options A. Frequently, B. Never, C. Rarely, D. Daily. Correct answer है C. Rarely. ये idiom किसी ऐसी चीज के लिए यूज होता है जो बहुत कम होती है। Question 46. The book Crime and Punishment was written by Dostoevsky. Options. Dostoevsky has written the book Crime and Punishment. Dostoevsky writes the book Crime and Punishment. Dostoevsky wrote the book Crime and Punishment. Dostoevsky had written the book Crime and Punishment. Correct answer C. बुक पहले लिखी जा चुकी है, इसलिए सिंपल पास्ट wrote बिल्कुल सही है। Question 47. The board will announce the results tomorrow. Options. The results are announced by the board tomorrow. The results will be announced by the board tomorrow. The results have been announced by the board tomorrow. The results were announced tomorrow by the board. Correct answer B. Future tense का passive बनाते वक्त will be announced use होता है। Question 48. Alas, our team has lost the match, they said. Options. They said with sorrow that their team lost the match. They exclaimed with sorrow that their team had lost the match. They exclaimed sadly that their team lost the match. They said with grief that their team has lost the match. Correct answer B. Alas strong emotion दिखाता है, इसलिए exclaimed with sorrow और past perfect had lost सबसे सही बैठता है। Question 49. Which sentence has the correct word order? Options. I went yesterday to the store. To the store I went yesterday. Went I to the store yesterday. Yesterday I went to the store. Correct answer D. टाइम एडवर्ब yesterday सेंटेंस के स्टार्ट में आकर सेंटेंस बिल्कुल नेचुरल लगता है। Question 50. Politicians seldom talk sense dash television. Options. At, on, in, off. Correct answer B. On. टीवी के लिए preposition on यूज होता है, इसलिए बोलते हैं on television. So friends, ये थे 12th फाइनल एग्जाम के मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चांस टू लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टे फोकस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।